I have started the recording. Yes, yes, yes. I'm able to see. Okay, thank you, sir. Okay, so we'll start. Yeah, tell me in how many ways we can measure angles. What are the units? My voice is low. I don't know what is going wrong. Please bear with it for some time. Let's see how it goes. Okay, so what was my question was in what are the measure of units to measure any given angle? Anyone? Two, not clear. Okay, radian and degree. Arc, someone is saying arc, degree and radian. Yes, correct. Or I would say degree and radians. These are the two ways in which we can measure a given angle. This is called as a degree. Yeah, radian. What is radian? That only we are going to discuss. So I have some patience. So this is called as a sexagesimal system. Degree measure is called as a sexagesimal system that we have already discussed till our 10th standard. And what is radian? Radian is called as a circular system. Circular system. Okay. Yeah. Someone raise the hand. 1 second. Sir, your voice is audible. Be a little loud so that like थोड़ा सा कभी कभी slow जा रही है. That is okay, Okay. sir. Okay. 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 Yeah. So basically we can measure angle. जैसे हम distance को कैसे कैसे measure कर सकते हैं? We can distance measure. We can measure a distance in kilometers, meters, centimeters. US में they measure in miles. In same way, angle को भी we can represent in degree as well as in radian. Everyone is very well known to the degree thing. What we are going to learn is a radian thing, which is very important. Physics में भी use होगा, maths में भी majorly use होगा. Everything you must be uh, writing angle in terms of radian. Okay, so what is radian? Basically, how it got derived, that we will see. See, as its name suggests, it is a circular system. That means there is something related to a circle. There is something related to a circle. So I made a one circle. Okay. So I made a circle. Now, what you are going to do is, can anyone tell me how come 1 degree was arrived? How was the 1 degree arrived? Any one of you? 1 degree कैसे? 1 degree कितना होता है? 1 degree कितना होता है? You will say कि सर protractor से we will measure. Protractor से we will measure. Yeah, Jai. Yeah, correct, correct. If see something must be derived from something, ना? Something we know that is 1 degree we know, पर वो ऐसे तो आ नहीं गया होगा. There is some working behind that. So क्या था वो? एक circle था. उसको if I divide in the 360 equal parts, 360 equal parts. Mind well, I am saying equal parts. So अगर मैं उसको 360 equal parts में cut करता हूँ, and उसका one of the part if I take aside, so that will be known as a 1 degree. वैसे 1 degree derive हुआ था, correct? So मैं एक सर्कल को, एनी सर्कल, रेडियस कोई मैटर नहीं करेगा, कोई भी सर्कल ले लो, उसको तुम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो एंड एक पार्ट को, ऑब्वियसली इक्वल पार्ट है तो यू कैन टेक एनी पार्ट आउट ऑफ दोस 360 पार्ट्स. ओके, सो वो 360 में से यू टेक वन पार्ट असाइड, देन यू विल गेट अ 1 degree. Okay, why it is 360? That's since
देखो अभी 90 डिग्री कैसे डिराइव होगा, 90 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 90 पार्ट्स को तुम ऐड करोगे, ये 360 राउंड होता है ना, वन सर्कल इज हाउ मच डिग्री, फुल वन सर्कल इज हाउ मच डिग्री, 360, दैट्स व्हाई 360 पार्ट्स में ही उसको डिवाइड करना पड़ेगा, वो रिवर्स वे राउंड है, तो 360 डिग्री है, उसको मैं 360 पार्ट्स में कट करूंगा, वैसे 1 डिग्री आएगा, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल दैट इज 90 डिग्री, सो यू कैन से एक सर्कल को मैं 360 पार्ट्स में कट करूंगा, सो मेरे को 360 इक्वल पार्ट्स में, माइंड वेल 360 इक्वल पार्ट्स में, तो एक जो पार्ट होगा दैट विल बी ऑफ 1 डिग्री, ओके। नाउ 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 अभी व्हाट इज रेडियन, नाउ व्हाट इज रेडियन, नाउ सी, अभी मैंने 1 डिग्री वाला पार्ट साइड में ले लिया, 1 डिग्री वाला पार्ट साइड में ले लिया, अभी उसको you divide in 60 equal parts, 60 equal parts में you divide it, 60 equal parts में you divide it, can't see, okay, you are not able to see or what, okay, visible, okay, so if you take 1 degree aside and then उसको you divide in 60 equal parts, 60 equal parts में divide करो, 60 equal parts में divide करो and उसमें से you take one part aside, so that will called as a 1 radian, radian is denoted by dash like this, 1 radian, 1 radian is like this, 2 radian is like this, 3 radian is like this, okay, sorry, I was one second I was about to tell you, just a second, yeah, this is called as a 1 minute, mind well, this is minute, sorry, actually my video is on, yeah, my video is on, cannot see, I don't know what is going wrong, okay, sorry, I don't know what is wrong, cannot see, I'm not able to hear, the screen is visible, videos off, okay, visible, okay, so where I was, I took 1 degree aside, then I made a 60 equal parts of this, I made a 60 equal part of this, and one part out of that is called as a 1 minute, 1 minute, okay, it is 1 minute, so minute is also a measure in which we can measure any angle, so 1 minute, then 2 minutes, then 3 minutes, no, 1 degree is not 1 minute, 1 degree is 60 minutes, minute is denoted by this dash, 1 डिग्री 60 मिनट, सिंस देखो ना मैंने क्या किया, एक जो डिग्री था, सबसे पहले 1 डिग्री कैसे मिला, मैंने एक सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, करेक्ट, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मेरे को 1 डिग्री मिलना है, बाद में 1 डिग्री को मैंने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्दर 60 इक्वल पार्ट में फर्दर डिवाइड किया, एंड उसमें से एक पार्ट मैंने साइड में लिया, दैट इज कॉल्ड एज अ 1 मिनट, ओके, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट्स होगा, कैन आई से 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, परफेक्ट, नाउ व्हाट आई विल डू नेक्स्ट इज 1 मिनट मेरे को मिला, 1 मिनट में मेरे को मिला, अभी उसको फर्दर मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, या सानिका गॉट इट राइट, करेक्ट, अभी 1 मिनट मेरे को मिला, उसको मैं वापस कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा, 60 पार्ट्स में, 60 पार्ट्स में, तो उसमें से जो एक पार्ट होगा उसको वी कॉल एज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, जैसे अपन इसमें होता है
हाँ यू कैन राइट, जैसा हम इसमें देखते हैं, जैसे कि डिस्टेंस जो होता है बहुत स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है तो नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, वैसे भी हम कर सकते हैं ना। तो इन सेम वे डिग्री को, डिग्री मेजर को मैं मिनट्स में भी देख सकता हूँ। हमने 1 डिग्री से छोटा नहीं देखा था टिल नाउ, आई गेस स्कूल लेवल तक 1 डिग्री से छोटा तुमने देखा ही नहीं होगा, एंड विच इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लॉट एज वेल, बनाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, करेक्ट। सो आज क्या देखा हमने कि 1 डिग्री से छोटे एंगल को मैं मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ कि 1 डिग्री के इक्वल 60 पार्ट्स गिराओ, एक पार्ट विल बी ऑफ 1 मिनट। ओके, so what we can conclude is 1 degree is 60 minutes, and बाद में मिनट, 1 मिनट को वापस 60 पार्ट्स, इक्वल 60 पार्ट्स में तुम कन्वर्ट करो तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, 60 मोर मिनट्स मिलेगा। तो कैन यू से 1 minute is equal to 60 seconds? But sir, 1 degree should be 1 minute. How come 1 degree is not 1 minute? 1 degree 60 minute ना। देखो तुमने ध्यान से सुना नहीं, पहले क्या किया, 1 डिग्री कैसे मिला समझा, सर्कल को मैंने 360 इक्वल पार्ट्स में कट किया, उसका वन ऑफ द पार्ट विल बी योर 1 डिग्री, करेक्ट। बाद में मैंने क्या किया, 1 डिग्री वाला लिया मैंने, उसको मैंने देखो ना 60 इक्वल पार्ट्स में कट किया, 60 इक्वल पार्ट्स निकाले मैंने, एंड उसमें से एक पार्ट, उसमें से एक पार्ट को बोला जाता है 1 मिनट, उसमें से एक पार्ट को बोला जाता है 1 मिनट। तो वैसे कितने पार्ट्स है, 60 पार्ट्स। सो यू विल से 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। नाउ गॉट माय पॉइंट? ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे, ये 1 मिनट को भी और छोटा करेंगे, 1 मिनट को भी और छोटा करेंगे। सो 1 मिनट मैंने लिया, ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग वी कांट डू दिस। हम 1 मिनट से छोटा एंगल, क्या 1 डिग्री से छोटा एंगल बनाएंगे तो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो कंप्यूटर कैन डू इट, सो हम बनाने जाएंगे तो नहीं होने वाला, ठीक है। सो 1 मिनट को अगेन भी डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स, उसका वन ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड एज अ 1 सेकेंड। ये वही सेकेंड है जैसा हम टाइम में देखते हैं, वही कन्वर्जन यू कैन से कि 1 डिग्री 60 मिनट, देन 1 मिनट इज 60 सेकेंड। ओके, तो कैन आई से 1 सर्कल इज how many degree? We can conclude this as 1 complete circle is of how many degree? 360 degree, correct. Then 1 degree is of how many minutes? 1 degree is of how many minutes? 60 minutes, correct. Minute is denoted by 1 dash, and 1 minute is of how many seconds? How many seconds? 60 seconds. For second we use 2 dashes. Okay, for second we use 2 dashes. ठीक है, this was more about degree वाला thing. We haven't started anything for radian thing. ये सब डिग्री वाला थिंग था, पर इन मोर डिटेल। डिग्री में हम अब तक सिर्फ डिग्री मेजर ही देखते थे, पर डिग्री से 1 डिग्री से भी छोटा होता है जो होता है मिनट, एंड मिनट से भी छोटा होता है वो होता है सेकेंड। सर कैन वी राइट 1 डिग्री इक्वल टू 1 आवर? 1 डिग्री इक्वल टू 1 आवर? नो, 1 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 1 आवर। 1 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर नहीं होगा, वो देखेंगे मैथ्स में, देखेंगे एंगल एंड मेजरमेंट में देखेंगे। 1 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 1 आवर। कैन एनीवन टेल मी 1 डिग्री इक्वल टू, लॉजिकली सोचो ना, चलो लॉजिकली हम सोचते हैं, लेट्स से 3 o'clock है, मतलब इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, लॉजिकली सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं। इफ यू वांट यू कैन राइट, टेल मी, जब मेरे को बोलो ये 2 मार्क के बीच में कितने एंगल हो गए, 2 मार्क के बीच में कितने एंगल हो गए। लेट्स से एक 12 पे है एंड दूसरा 1 पे है, आर एंड 12 पे है, सॉरी आई एम नॉट एबल टू राइट इट क्लियरली, 30 डिग्री, वेरी गुड, एवरीवन गॉट दिस, या 30 डिग्री। सो 2 मार्क के बीच में दैट इज एंगल ऑफ 30 डिग्री। लॉजिक है ना, सोचो ना, ये 30 होगा, देन ये 30 होगा, एंड ये 30 होगा, 30 30 30 90, 30 30 90, ठीक है, 30 30 90। तो यू कांट से कि 1 आवर में 1 डिग्री होगा, मतलब एक बचेगा तो 30 डिग्री कवर होगा मेरा
ये हैंड्स, ठीक है, दूसरे आर में वापस 30 एंड वापस 30, गॉट इट। सो वो हम देखेंगे मोर डिटेल में जब भी हम क्वेश्चन करेंगे कि लेट्स से 3 आवर एंड 20 मिनट हुआ है तो उसके बीच में कितना एंगल होगा, मिनट एंड आर एंड के बीच में कितना एंगल बनेगा। ओके, रेडियन पे आता हूँ मैं, होल्ड ऑन। रेडियन अब तक मैंने डिस्कस ही नहीं किया। देखो, विल डिस्कस इन शॉर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल कैन बी मेजर्ड इन टू वेज, वन इज इन डिग्री मेजर एंड द अदर इज रेडियन। डिग्री जब हम अब तक देख चुके हैं डिग्री क्या होता है, हाँ लॉन्जिट्यूड में यूज हो सकता है, या उसमें मोस्ट प्रिसाइज होता है ना, जैसे मिसाइल्स में 1 डिग्री का भी ये नहीं चलता है, 1 डिग्री का भी थोड़ा डिफरेंस हो जाए तो भी इट माइट कॉज डिजास्टर, तो उसमें ज्यादा मेजर हो सकता है, ठीक है। सो एंगल दो चीज में हम कर सकते हैं, 1 आवर इज 36, हाँ बोल सकते हैं, वो तो कन्वर्जन तुम हमें कर सकते हो। ओके, सो एंगल कैन बी मेजर्ड इन टू वेज, और यू कैन से इन 2 यूनिट्स, डिग्री एंड रेडियन। ओके, सो डिग्री अब तक हमने देखा था, डिग्री नॉर्मल जो था वही, पर हमने फाइनेस्ट यूनिट्स ऑफ डिग्री भी देखा कि 1 डिग्री से हुआ तो हम उसको ऑब्वियसली हम 0.5 डिग्री एंड ऑल थिंग यूज कर सकते हैं, पर उससे बेटर हमको यूनिट ही दे दिया कि 1 डिग्री से 1 डिग्री वाला एंगल लो, उसको 60 इक्वल पार्ट में कट करो, उसका वन ऑफ द एंगल विल बी ऑफ 1 मिनट, उसको हम बुलाएंगे 1 मिनट। ओके, देन व्हाट नेक्स्ट, ये 1 मिनट को you convert, you cut it into 60 equal parts, you cut it into 60 equal parts, उसका एक पार्ट ले लो and उसको भी we will call it as a 1 second. So what my conversion goes like, one circle is of 360 degree, 1 degree will make a 60 minutes and 1 minute will make a 60 seconds. Am I clear till now? सबको समझा? Everyone got this? Okay. Because 1 degree is second. No, 1 degree is not 1 hour. I have made myself clear ना, 1 degree is not 1 hour. कैसे 1 hour होगा? 1 hour तुम ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब वो देखेंगे 2 मार्क के बीच में एंगल, यू कैन से कि 1 बजा है तो 12 मेरा मिनट एंड होगा, 1 मेरा आवर एंड होगा, तो उसके बीच में 30 डिग्री होगा, मतलब 1 hour यू कैन से कि 30 डिग्री हो सकता है। हाँ, 1 बजेगा तो 30 डिग्री होगा दोनों के बीच का एंगल, 2 बजे इट वुड बी 30 + 30 विच इज 60, 3 बजे इट वुड बी 30 + 30 + 30 विच इज 90, मतलब यू कैन से 1 डिग्री इज 1 hour, 30 डिग्री इज 1 hour। ओके, वो उसके ऊपर सम करेगी, तो पेशेंस एंगल एंड मेजरमेंट में है। Let me show the previous slide of that. Okay, just have a look at this. जितना तुमको जरूरत लगता है यू कैन नोट इट डाउन। ओके, डन। Between 12 and 1 there is a 300 second. Oh, you can say. Okay, done, right. Okay, now we are going to discuss the radian system. तो रेडियन आया कैसे, मैथमेटिशियन ने कैसे वो डिराइव किया। ओके, सो अभी रेडियस कैसे आया, रेडियस कैसे आया, सी सॉरी रेडियंस कैसे आया। हम कोई भी एक सर्कल लेते हैं ऑफ रेडियस आर, हम कोई भी एक सर्कल लेते हैं, हम कोई भी एक सर्कल लेते हैं ऑफ रेडियस आर। अभी माइंड वेल, this is a circle of 1 second, just a second, this is a circle of radius r and this is my center over here, this is my center O। okay, अभी देखो मैंने क्या लिया, let r be the radius of circle with center O and a और b है ना, मैं 2 पॉइंट लेता हूँ on a circle, let a and b be the 2 points on the circle, such that, mind well, such that length of arc AB, length of arc AB is equal to r,
माइंड वेल कैसे रेडियन डिराइव हुआ था, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज, मैंने क्या बोला, सर्कल का रेडियस क्या है, आर है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी भी क्या बोला, वो भी मैंने आर बोला। ये जब सिनारियो होगा देन ये एओबी को क्या बोलते हैं, डू यू नो, मेजर एंगल एओबी सेंट्रल एंगल बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं, बराबर ना, सेंट्रल एंगल, या सो मेजर एंगल एओबी is said to be a, is defined as 1 radian, is defined as 1 radian. 1 second. I would say that when length of arc AB is equal to R, then we can say measure of angle AOB, or you can say central angle AOB is said to be a of measure 1 radian, is said to be of 1 radian. तो ये सिनारियो में 1 रेडियन बनता है, ये सिनारियो में 1 रेडियन बनता है। 1 डिग्री कैसे बना था, कोई भी एक सर्कल उठा लो, कोई भी एक सर्कल उठा लो, उसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, उसका वन ऑफ द एंगल तुम मेजर करो, वो 1 डिग्री ही होगा। डिग्री उससे उससे ये मैटर ही नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, रेडियन से वो इंडिपेंडेंट है। कोई भी तुम 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, उसको 360 इक्वल पार्ट में कट करो, एक पार्ट विल बी ऑफ 1 डिग्री। तुम 5 सेंटीमीटर वाला रेडियस बनाओ, उसको 360 इक्वल पार्ट में कट करो, 1 डिग्री will be of one of the part. Okay, now what I was saying is 1 रेडियन कैसे मिला, नेट इश्यू है, ओके आई विल टेल यू। अभी देखो रेडियन सिस्टम कैसे डिराइव हुआ था, ये कैसे डिराइव हुआ था डिग्री सिस्टम, एज आई जस्ट सेड कि कोई भी एक सर्कल उठाओ, सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में कट करो, सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में कट करो, एंड वन ऑफ द पार्ट विल बी ऑफ 1 डिग्री। ओके, तो वो के वैसे 1 डिग्री डिफाइन हुआ है। नाउ व्हाट अबाउट रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम में क्या करना है, कोई भी एक सर्कल उठाओ ऑफ एनी रेडियस आर, ऑफ एनी रेडियस आर। अभी एक रेडियन मतलब कितना, एज वी नो 100 रुपीज मतलब 1 रुपीज के 100 कॉइन आ सकते हैं। वैसे एक रेडियन मतलब एक्चुअली में कितना डिग्री, एक्चुअली में कितना डिग्री, वो हम डिराइव करेंगे बाद में। सो एक रेडियन मतलब कितना, एक मैंने सर्कल लिया ऑफ रेडियस एनी रेडियस आर, लेट्स से दैट रेडियस इज आर, करेक्ट। अभी क्या किया, हम क्या करेंगे, कोई भी एक एंड फिक्स रख दो, कोई भी एक एंड फिक्स रख दो। देखो ओरिजिनली अगर तुमको एक रेडियन मेजर करना है तो ये एक एंड फिक्स रखा, ए में है ना, वेरी करता जाओगे ऐसा ऐसा ऐसा, टिल व्हाट टाइम, ये ए है, इट माइट पॉसिबल ए ये हो या तो ये हो, तो मैं क्या करूंगा, ये एरो मूव करता जाऊंगा। पर क्यों मूव करना है, मेरे को क्या सिनारियो चाहिए, मेरे को लेंथ ऑफ आर रेडियस जितना चाहिए, लेंथ ऑफ आर रेडियस जितना चाहिए। अगर जो केस में जो पॉइंट पे मेरे को लेंथ ऑफ आर्क रेडियस जितना मिल गया, वो पॉइंट मैं टिक करूंगा एंड उसको मैं ए नाम दूंगा, उसको मैं ए नाम दूंगा। हाँ, बी भी वेरी कर सकते हैं, दैट इज एनी एनी वे यू कैन डू। तो जो पॉइंट पे मेरे को लेंथ ऑफ आर्क ओ ए या तो ओ बी विच इज नथिंग बट रेडियस, उसके जितना मिल गया, वहां मैं स्टॉप करूंगा, वहां मैं ए लिख दूंगा, एंड बाद में ये जो मेजर होगा ना, ये जो एंगल होगा ना, दैट विल बी ऑफ 1 रेडियन। तो रेडियन को कैसे डिनोट करते हैं, सी लिख के ऊपर, नंबर के ऊपर सी, ओके, 1 रेडियन, गॉट इट। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियन। डिग्री में कैसे हम ऐसा लिखते हैं 1 डिग्री, वैसे रेडियन में कैसा लिखेगा, ऐसा सी की तरह, ठीक है। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर अ रेडियन, गॉट इट, समझा क्या। तो कैसे डिराइव हुआ था, आई विल कम अगेन 1 सेकंड, सी what we can do is, क्या हुआ रहेगा, देखो मैथमेटिशियन ने कैसे डिराइव किया था, एक सर्कल बनाया, 1 सेकंड, एक सर्कल था, ठीक है, बाद में एक पॉइंट किधर तो फिक्स कर लिया, ये इसका सेंटर है, बराबर। बाद में उसने एक पॉइंट लिया इसके ऊपर, इसके ऊपर सर्कल के ऊपर, उसको लेट से बी नाम दिया, यू कैन नेम इट एज ए एज वेल।
हाँ, अपने को सिस्टम क्यों चाहिए? फॉर इजी कैलकुलेशन और बेटर रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम मीटर ऑलरेडी था तो सेंटीमीटर की क्या जरूरत, सेंटीमीटर ऑलरेडी था तो मिलीमीटर की क्या जरूरत। इन सेम वे एडवांटेज होगा सबका। ओके, सो फिजिक्स में मोस्टली रेडियन, इनफैक्ट मैथ्स में भी नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी डीलिंग इन रेडियन ओनली। हम साइन 90 नहीं बोलेंगे, साइन ऑफ 90, ऐसा नहीं होता है। मतलब होगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम यूज नहीं होगा, पर वी ऑलवेज बी डीलिंग इन अ रेडियन ओनली। अभी साइन 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन होता है। ये देखो सी लिखा है मतलब रेडियन है। तो ऑब्वियसली फॉर अ कन्वीनियंट वी मेक दी डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स। जैसे जैसा मैंने बोला, मीटर था फिर भी सेंटीमीटर ढूंढा, सेंटीमीटर था फिर भी मिलीमीटर ढूंढा, और मिलीमीटर था फिर भी नैनोमीटर ढूंढा, माइक्रोमीटर ढूंढा, एंड सो ऑन। वैसा तो फॉर एक्यूरेट दिस थिंग, उसलिए हमने ये सब किया था। ठीक है, नाउ अभी अभी मैंने क्या बोला, दिस इज ऑफ एनी रेडियस आर, करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, हम है ना इधर से ये पॉइंट लेंगे, लेट्स से ये है, ये पॉइंट देखा। अभी मेरे को क्या करना है, देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को है ना ए पॉइंट प्लॉट करना है, मेरे को ए पॉइंट प्लॉट करना है, पर ऐसे रैंडमली प्लॉट नहीं करूंगा मैं। मेरे को ए पॉइंट ऐसे प्लॉट करना है सच दैट ये जो आर्क बने उसका मेजर कितना होना चाहिए, उसका मेजर रेडियस जितना होना चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क ए बी शुड बी इक्वल टू माई लेंथ ऑफ रेडियस, शुड बी इक्वल टू माई लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट आऊंगा। लेंथ ऑफ रेडियस का अपना ये फॉर्मूला क्या था, स्कूल में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर लेंथ ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या था, एनीवन d/2। नहीं नहीं नहीं, डायमीटर बाई 2 कैसे होगा? लेंथ ऑफ इसका, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पाई आर थीटा, एस इक्वल टू आर थीटा। हाँ, कोई 360 के टर्म्स में ही बोलता है, हाँ, या तो एस इक्वल टू आर थीटा था ना, एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, इन दिस वे यू कैन मेजर लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो अपने को कितना मेजर होना चाहिए, उसका रेडियस जितना होना चाहिए, करेक्ट। सो मैं क्या करूंगा, इसको मूव करता जाऊंगा। लेट से ये पॉइंट में इसका रेडियस आर नहीं मिला तो मैं नया पॉइंट लूंगा, इधर भी नहीं मिला तो लेट से मैं नया पॉइंट लूंगा। ऐसे ऐसे करके मैं वो पॉइंट पे पहुंचूंगा जहां मेरा करेक्ट। तो वो बाद में जो मेरा सेंट्रल एंगल हो रेडियस, व्हाट माय पॉइंट, just a second. Clear? Is it clear? Is it clear? Still you can't hear me. No, sir. Just a second. Someone is able to hear me. Someone is able to hear me. Okay, now it is okay. Okay. So समझा, एक रेडियन कितना होता है? Can I say 1 radian is S equal to R? वापस बताओ क्या? Okay. Always 1 radian is 57 degree. हाँ, मतलब 1 radian is 57.3248 to be precise. 57.3248.
ओके कुछ लोग को शायद आवाज नहीं आ रहा था, तो मैं सिंपल वर्ड में वापस बता देता हूँ। अपने पास सर्कल होगा, राइट? सर्कल होगा, सर्कल में 2 पॉइंट हो गए, लेट्स से ए एंड बी, ए एंड बी, करेक्ट? ये मेरा सेंटर है। इग्नोर दी सर्कल, मैंने कुछ रैंडम बना दिया। हाँ, तो ये कोई तो पॉइंट, ये मेरा सेंटर है, ये दो उसके रेडियस है। तो मेरे को ए पॉइंट ऐसे चाहिए सच दैट ये जो ए बी हो ना, ए बी आर्क, ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ आर्क। वो भी कितना चाहिए, आर जस्ट, उसका भी लेंथ आर जितना होना चाहिए। वो पॉइंट पे जो मेरा सेंट्रल एंगल बनेगा ना, दैट इज नोन एज अ वन रेडियन, दैट इज नोन एज अ वन रेडियन। ठीक है, कोई भी सर्कल उठा लो, लेट्स से मैं उठाता हूँ 2 सेंटीमीटर वाला सर्कल, 2 सेंटीमीटर वाला सर्कल। ओके, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरा ए पॉइंट लेट्स से इधर मिल गया मेरे, या तो बी पॉइंट मिल गया इधर मेरे। तो मेरे को ए पॉइंट में वेरी करता जाऊंगा सर्कल के ऊपर, ऑब्वियसली सर्कल के ऊपर मैं वेरी करता जाऊंगा। एंड मेरे को क्या मिलना चाहिए, मेरे को ए पॉइंट ऐसे में प्लेस करूंगा सच दैट ये जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ आर के बी, वो भी 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो वो जो पॉइंट मिल गया, बाद में जो सेंट्रल एंगल होगा, दैट इज नोन एज अ वन रेडियन, दैट इज नोन एज अ वन रेडियन। गॉट माय पॉइंट? समझा क्या सबको? ओके, सो वन रेडियन कैसे डिराइव हुआ था? एस इक्वल टू आर थीटा, वो स्कूल में था। एस इक्वल टू आर थीटा स्कूल में तुमने पढ़ा होगा। वो अभी अपने को, वो एक्चुअली ऐसे आता है ना, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं ऐसा। लेट्स से पूरे सर्कल का, हाँ ठीक है, अगर एस इक्वल टू आर थीटा नहीं पढ़ा था तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पूरे सर्कल का ये कितना होता है सरकमफरेंस? 360 इज करस्पॉन्डिंग टू 2 पाई आर, बराबर? 360 इज करस्पॉन्डिंग टू 2 पाई आर। तो लेट्स से कोई मेरे को रैंडम आर्क ढूंढना है, लेट्स से कोई रैंडम आर्क ढूंढना है, उसका सेंट्रल एंगल होगा ऑब्वियसली थीटा, बराबर? तो उसके लिए मेरे को ये ढूंढना है, एस इज डिनोटेड, लेंथ ऑफ आर्क इज डिनोटेड बाय एस। हाँ, तो हम क्या करते हैं, रिवर्स प्रोसेस करते हैं। एस, अगर 360 सेंट्रल एंगल है तो उसका करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क होता है 2 पाई आर। तो थीटा के लिए ये कितना होगा, समथिंग काइंड ऑफ दिस। तो थीटा के लिए मेरा सेंट्रल एंगल कितना होगा, और तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो s इंटू 360 इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा। तो ये 360 नीचे चला जाएगा, हाँ दैट इज ऑल्सो द वे। हाँ, तो 360 इसके नीचे आ जाएगा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, करेक्ट? हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। s इक्वल टू आर थीटा भी चलता है, एंड वेयर थीटा इज इन रेडियंस। ओके, ये तुमने नहीं पढ़ा होगा, थीटा है ना रेडियन में होना चाहिए, ये तुमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, तुम ऐसे करते हो। ठीक है, वापस वन रेडियन रिपीट करूँगा। ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। देखो वन रेडियन क्या होता है, एक सर्कल है, देखो वन रेडियन है, ये एक सर्कल है ऑफ एनी रेडियस आर, ये एक पॉइंट है उसके सरकमफेरेंस के ऊपर, करेक्ट? नाउ अपने को क्या करना है, अपने को इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है। वी हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, बराबर? पर कौन सा पॉइंट लेना है, ऐसा पॉइंट लेना है सच दैट, लेट्स से ये पॉइंट मेरे को मैंने लिया, पर कैसे लेना है, कोई भी रैंडम पॉइंट नहीं लेना है, मेरे को ऐसा पॉइंट लेना है कि वो जो आर्क बने, जैसे कि इधर बी ए बना, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, उसका लेंथ मेरे रेडियस जितना होना चाहिए, इसका लेंथ शुड बी इक्वल टू आर। अगर ये केस होता है तो बाद में जो सेंट्रल एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वन रेडियन, दैट इज कॉल्ड एज अ वन रेडियन। ठीक है, अभी वन रेडियन और डिग्री, मैं वन रेडियन और डिग्री में बोलूँ तो वन रेडियन इज टू बी प्रीसाइज 57.3248 डिग्रीज। टू बी प्रीसाइज एक रेडियन इतना होता है, एक रेडियन होता है 57.3248 डिग्री, एंड डिग्री को अभी मैं मिनट्स एंड सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट? तो वो हो जाएगा 57 डिग्री, आई वुड से 57 डिग्री, जस्ट अ सेकंड, हाँ 57 डिग्री
19 minutes and 29 seconds. ठीक है, कॉर्ड का लेंथ नहीं, आर्क का लेंथ, आर्क का लेंथ. कॉर्ड इज समथिंग डिफरेंट, आर्क का लेंथ. करेक्ट. Got it? So in this way, हाँ, ये स्टैंडर्ड वैल्यू ही है. This will be there in your textbook as well. This will be there in your textbook as well. ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू ही है. 29 सेकेंड्स है ना, मैंने बोला ना. ये देखो ना, ये देखो, मैंने बोला था ना, हम डिग्री को मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना. हाँ, 2 रेडियन इसका मल्टीपल होगा. 2 रेडियन इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, और एक 1 रेडियन इधर आएगा. और एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे मेरा ये जो मेजर होगा वो लेंथ ऑफ आर्क जितना हो. ये जो लेंथ है वो मेरा रेडियस जितना हो, तो वो तुम्हारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा. तो वापस ये 1 डिग्री बनेगा, वापस ये 1 डिग्री बनेगा. वापस और एक पॉइंट ढूंढो जो ऐसा होगा सच दैट जो ये आर्क बने उसका लेंथ कितना हो, मेरे रेडियस जितना. उसका लेंथ मेरा ये रेडियस जितना हो. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके तुमको 1 डिग्री और मिला. दिस इज 1 डिग्री. तो दिस एंटायर थिंग वुड बी 3 डिग्रीज. करेक्ट. हाँ, अभी तुम लॉजिकली सोचो ना, एक हाफ एंगल में, सॉरी, एक हाफ सर्कल में कितने रेडियन आते होंगे? C is for रेडियन ओनली. कितने रेडियन आते होंगे? कितने रेडियन आते होंगे? पाई. परफेक्ट. जो 3 बोल रहा है ना, वो देखो ना 3 कैसे होगा. तुम लॉजिकली 57 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ भी करके 57.33 हो जाएगा. मेरे को बोलो 57.33 कैसे आएगा? 5 कैसे? मैं हाफ सर्कल की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ सर्कल. 57.33 इंटू 3 भी करोगे तो कितना आएगा? 171.99 आएगा. बराबर. इंटू 3 भी करोगे तो 171.99 आएगा. करेक्ट. So can I say 3 रेडियन is equal to this much degree? ठीक है, पर मेरा एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है? कंप्लीट हाफ सर्कल, एक मैं बोलूँ तो हाफ सर्कल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का. करेक्ट, इन टर्म्स ऑफ डिग्री. ठीक है. हाँ, पर रेडियन आई कांट से 3 रेडियन, सिर्फ 3 रेडियन है. थोड़ा पार्ट बच भी जाएगा. देखो तो 3 रेडियन इतना होता है 171.99, 171.99 रेडियन. बराबर. 3 पॉइंट समथिंग. करेक्ट. सो टू बी प्रिसाइज 180 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई रेडियन. पाई अपना 3.142. ठीक है. सो दिस इज द कन्वर्जन दैट वी सपोज टू रिमेम्बर. मैंने देखो लॉजिकली समझा, उसके पीछे का एक्चुअल मैथमेटिक्स जानने की तो उसके लिए तुमको पूरा कंप्यूटर में पूरा ये बनाना पड़ेगा. देन एक्चुअली देखना पड़ेगा 1 रेडियन किधर तक जा रहा है, 1 रेडियन, दूसरा रेडियन. एंड लॉजिकली सोचो ना, 3 रेडियन कितना होगा? 171. 171.99, वो तो पूरा आधा सर्कल होगा नहीं. एंड आधा सर्कल वी ऑल नो दैट इज ऑफ 180 डिग्री. दैट इज ऑफ 180 डिग्री. तो बचा हुआ तुम मेजर करोगे ना, तो 3 पॉइंट टोटल देखोगे ना, तो 3.14 रेडियन will be equal to 180 degree. 3414 radian, that is equal to 180 degree. So this is the conversion of degree to radian. 180 degree is pi radian. ठीक है, 180 degree is pi radian. pi का वैल्यू अपने को सबको पता है. करेक्ट ना? पाई का वैल्यू अपने को पता है. मैं ऐसे याद रख सकता हूँ ना, नहीं, 22/7 is the approximate value of the pi. उसका तुम गूगल करोगे ना तो तुमको मिलेगा. ऐसे ऐसे याद रखा करते हैं. मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी बीन्स. टू बी प्रीसाइज आंसर मिलेगा. कंटेनर ऑफ कॉफी, हाँ, मतलब ये क्या है उसमें से समझ में आएगा. देखो तुम गूगल भी करोगे ना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पाई समथिंग लाइक दिस. मेक में 3 लेटर्स है, आई में 1, हैव में 4, देन ए में 1, लार्ज में 5 है, कंटेनर में इफ यू सी 9 लेटर्स है, then 2, then 6, and then 5, and this is still going on and on and on. ठीक है. तो 22/7 is the approximate value of pi. तो स्कूल में बताते थे कि
अगर स्कूल में हमने सम किया था, वहां मेंशन किया करते थे कि यूज पाई एस 22/7। रीजन वो था कि रीजन क्या था? रीजन ये था कि तुम्हारे रेडियस जो था वो 7 का मल्टीपल देते थे वो केस में हमको 22/पाई को 22/7 लेने बोलते थे, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन अवॉइड करते थे, ठीक है। तो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई एंड स्टिल इट मे गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। वो रिकरिंग भी नहीं है एंड टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ठीक है। सो पाई ऐसा होता है, ओके। हाँ, तो 22/7 है ना, इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, दैट यू मेक योर सेल्फ क्लियर। वैसे तो देखा जाए तो 22/7 रैशनल है कि इररेशनल है? 22 is rational number where pi is a irrational number. So how can a rational number is equal to the irrational number? S equal to r theta मैं explain करता हूँ, ठीक है। हाँ, pi is a irrational number. So we say that 22/7 is the approximate rational representation of pi. Approximate rational representation of pi, ठीक है। So 180. So what where yeah. So what we are supposed to remember is 180 degree is equal to pi radian. ये अपने को याद रखना है, 180 degree is equal to pi radian। है समझ में? क्योंकि 1 रेडियन कितना होता है? 57.3248। तो राउंड ऑफ भी करके 57.33 भी लिया तो भी तुमको 180 डिग्री पूरा नहीं मिलने वाला, ठीक है। एंड अपने को पता है कि हाफ सर्कल जो होता है वो 180 का होता है, हाफ सर्कल जो होता है वो 180 का होता है, ठीक है। तो आई कैन से कि रेडियन मेजर में 171.99 ही मिला, 3 रेडियन। तो कुछ रेडियन कम पड़े रहेंगे, कुछ रेडियन कम हो गए। तो कितने हैं ये? इतने रेडियन कम पड़े, 0. दिस मच रेडियन इज लेफ्ट। तो आई कैन से पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो कितने रेडियन इधर मैं ऐड करूंगा तो 180 डिग्री होगा? आई वुड से 0.14159,265 द होल रेडियन, ठीक है। सो what we can conclude is क्या conclude कर सकते हैं? 180 degree is pi radian, ठीक है। So this what you are supposed to remember, 180 degree is pi radian। आया समझ में? Now also अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, ये तो हमको कन्वर्जन समझ में आया, तो हमको है ना, नो, देखो someone is saying के measure of radian should be dependent on radius। नहीं, जैसा मैंने डिग्री के केस में बोला, you make any circle of any radius। कोई कितना भी बड़ा सर्कल बनाओ, कितना भी छोटा सर्कल बनाओ, if you divide those circle into 360 equal parts, तो एक पार्ट will be of 1 degree only। उसको वो इंडिपेंडेंट है, रेडियस से इंडिपेंडेंट है। लॉजिकली सोचो ना, वो रेडियस से इंडिपेंडेंट ही होगा ना। इतना बड़ा सर्कल बनाओगे एंड उसका 360 इक्वल पार्ट्स में कट करोगे, 360 इक्वल पार्ट्स में, तो भी तुम्हारा जो ये होगा ना, दैट विल बी ऑफ 1 डिग्री ओनली। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। एंड सेम फॉर दिस। तो अगर तुम रेडियस ये बना रहे हो, 1 रेडियन तुमको मेजर करना है, तो कोई भी रेडियस का सर्कल ले सकते हो, पर तुमको क्या टेक केयर करना है कि तुम्हारा जो आर्क होगा दैट वुड बी सेम एज दैट ऑफ योर रेडियस, तो रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर का है तो आर्क भी 2 सेंटीमीटर हुआ, तभी यू कैन से कि योर सेंट्रल एंगल इज ऑफ 1 रेडियन। रेडियस अगर सर्कल तुम्हारा 5 सेंटीमीटर का है तो तुमको आर्क भी 5 सेंटीमीटर हो तब तक एंगल बनाते रहना है, उतना बड़ा एंगल बनाना है। एंड जब वो भी 5 सेंटीमीटर का हो गया, एट दैट टाइम यू कैन से कि हाँ, मेरे को 1 रेडियन मिलेगा। समझा? Am I clear? So it is independent of radius। डिग्री के बारे में लास्ट 2 स्लाइड बताओ। देखो हो गया? Previous slide, this one। And someone said, I guess equilateral triangle ना, कितने रेडियन हो गए? तुम ही बोलो ना, एक सर्कल में कितने रेडियस हो गए?
कितने रेडियंस हो गए, लॉजिकली सोच के बोलो ना। अगर हाफ सर्कल में पाई रेडियन होते हैं तो पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन हो गए, एज सिंपल एज दैट। हाँ 2 पाई। अभी समवन वाज सेइंग इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। हाउ कम इक्विलैटरल ट्रायंगल? दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ना, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ कर्व्ड सरफेस ना, सर्कल का ये पार्ट कर्व्ड है। पर एकदम माइन्यूटली देखोगे ना तो वो थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। अगर तुम छोटे से लाइन को इतना एकदम माइन्यूटली देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा बन जाएगा, पर स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं वो, इट विल टेंड टू अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पर वो बना नहीं रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन? पाई रेडियन, करेक्ट। तो ये हमको याद रखना है। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस ऑल थिंग? 180 डिग्री इज पाई रेडियन, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। और ये भी तुम याद रख सकते हो, 1 रेडियन इज 57.32.48 डिग्री। ठीक है, इन मिनट्स में प्रीवियस स्लाइड। हाँ ठीक है। और एस इक्वल टू आर थीटा है ना, डोंट वरी, शायद एसएससी जिसने दिया होगा उनको नहीं होगा, दूसरे बोर्ड्स में आता है, पर डोंट वरी, वी हैव सम्स ऑन दिस। तो तुम ऐसे किया करते होगे, देखो ना मैंने बोला 360 डिग्री मतलब 2 पाई आर। ठीक है, तो अगर किसका थीटा कुछ अलग होगा तो उसका लेंथ ऑफ आर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो एस इक्वल टू आर थीटा, अगर नहीं समझा है तो नथिंग टू वरी, और मैंने समझाया भी नहीं था उतना उसमें। between 2 radii is 1 radian. Can we say that the angle between 2 radii is 1 radian? S is the length of r. S is the length of, हाँ मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि 2 रेडियस के बीच का एंगल इज 1 रेडियन, पर रेडियस तो बाजू में भी हो सकती है ना, लाइक दिस, एकदम साइड इधर भी तो हो सकती है रेडियस। पर पर ये आर्क अगर आर होता है तो यस यू कैन से कि ये 1 रेडियन होगा, करेक्ट। पर ऐसा मैं जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि एंगल बिटवीन 2 रेडियाई इज अ 1 रेडियन। मैं जनरलाइज स्टेटमेंट देना गलत होगा ना। जैसे मैं इधर एक रेडियस लूं एंड दूसरा रेडियस इधर लूं, ये तो दोनों रेडियस ही है, तो उनके बीच का एंगल क्या मैं 1 रेडियन बोल पाऊंगा? क्या नहीं बोल पाता ना। थर्ड कंडीशन भी तो इंपॉर्टेंट है कि उनके बीच में जो आर्क बनता है दैट इज शुड बी ऑफ द लेंथ आर। ठीक है, आया समझ में? ओके, नाउ आर यू डन? ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस? ये सब बोला मैंने, चूर्ण दिया तुमको, उसका कंक्लूजन क्या है? उसका कंक्लूजन ये है कि 180 डिग्री इज नथिंग बट अ पाई रेडियन, दैट्स इट। ये तुमको याद रखना है, 180 डिग्री इज द पाई रेडियन। तो हमको क्या करना है? हमको कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। हाउ 180 इक्वल टू पाई रेडियन? अरे भाई बोला तो सही, 180 इक्वल टू पाई रेडियन ही होगा ना, मैंने बोला ना। देखो 1 रेडियन कितना ये था, 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री मैंने बोला, 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री बोला मैंने? बोला 57.324, राउंड ऑफ करके 57.33, करेक्ट, 57.33। डेरिवेशन नहीं याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है तुमको। एट द एंड 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन याद रखना है, दैट्स इट। ये तो मैंने पीछे का बैकग्राउंड दिया। एंड तुमको चाहिए अभी 1 रेडियन इक्वल टू 57.32 डिग्री कैसे आया, तो तुम क्या करो, तुम एक सर्कल उठाओ, कोई भी रेडियस का, कोई भी रेडियस का सर्कल उठाओ। घर पे तुमको अगर ट्राई करना है कि सर कैसे, मेरे को नहीं पता, मैं आई एम नॉट अग्री विथ यू, तो क्या करो, एक सर्कल उठाओ। एज नाउ आई एम रिपीटिंग मैं रिपीट कर रहा हूँ भी पॉइंट, लेट्स से 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। दिस इज, नाउ इज इट क्लियर? हेलो, एम ऑडिबल? नाउ इज इट क्लियर?
ओके सो मैंने क्या बोला, जिसमें डिग्री को 2 सेंटीमीटर सर्कल लिया, कोई भी सर्कल ले सकते हो ऑफ योर चॉइस, एक पॉइंट सर्कल पे ऊपर लो, तो ये तुम्हारा एक आर्म हो जाएगा एंगल का, इनिशियल आर्म बोलते हैं इसको। बिग टर्मिनल आर्म तुमको ऐसे प्लेस करना है, ऐसे पॉइंट पे प्लेस करना है सच दैट वो जो लेंथ बने ना, आर्क का लेंथ, वो तुम्हारे रेडियस जितना होना चाहिए, रेडियस जितना होना चाहिए। तो वो पॉइंट पे जो सेंट्रल एंगल होगा उसको वी कॉल 1 रेडियन। एंड तुम ये मेजर कर लेना प्रोट्रैक्टर से, तो यू विल गेट कि तुमको समथिंग 57.3248 जितना मिलेगा। मतलब अपन इतना प्रिसाइजली नहीं कैलकुलेट कर सकते, 57.3 तक हम बोल सकते हैं, बराबर ना। एक के बीच में ये 10 स्मॉल लाइंस रहेगी, तो थर्ड लाइन होगा तो 57.3 होगा, समझा। तो तुम ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो कि 1 रेडियन इज 57.3 रेडियन, अराउंड उतना होता है, ठीक है। सो व्हाट इज द crux of this, what I said is conversion. What is conversion? 180 degree is equal to pi radian, ठीक है। तो you can say, तो conversion हमको किससे किस में करना है, we supposed to convert from degree to radian and vice versa। कैसे भी हो सकता है, डिग्री टू रेडियन भी हो सकता है एंड रेडियन टू डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर सपोज टू नो। तो 180 डिग्री टू पाई, अभी चलो कम ऑन टेल मी, 1 डिग्री से रेडियन क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 180 के डिवाइड बाय 180 के क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तुक्का मारो, जस्ट गिव इट अ ट्राई, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, डिवाइड किससे करूं, किससे डिवाइड करूं, एनीवन, पाई से, पाई बाय 180 suggest, yeah, correct, 180 by pi, someone is saying 180 by pi, कोई तो 57, कोई तो अलग ही सस्ता नशा करते हो, 57, anyone else, degree to radian, degree to radian, 360, someone is saying 360, pi, okay, pi by 180, okay, correct, okay। देखो आई टेल यू, डिग्री टू रेडियन के लिए विल मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, will multiply by pi by 180, and for radians to degree we multiply by 180 by pi, ठीक है, ठीक है। डिग्री टू रेडियन विल मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 एंड रेडियन टू डिग्री विल मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, ठीक है। तो अपने स्टैंडर्ड एंगल्स हम कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड एंगल कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से पहला स्टैंडर्ड एंगल तो 0 है, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, 0 रेडियन और 0 डिग्री सेम ही होगा, 0 रेडियन एंड 0 डिग्री सेम ही होगा, 0 रेडियन बोलो 0 डिग्री बोलो, वन एंड द सेम थिंग, कोई मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है। नाउ विल सी द नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंगल विच इज 30 डिग्री, विच इज 30 डिग्री। चलो 30 डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, कैसे करूं, आई मल्टीप्लाई दैट विथ पाई बाय 180, एम आई करेक्ट। जैसे मैंने बोला डिग्री टू रेडियन इज मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो क्या होगा 36, so I'll get pi by 6 radian, okay। So my answer in terms of radian would be pi by 6। Repeat the conversion, okay। देखो ना, conversion is what you have to know that 180 degrees pi radian, सिंपल है। देखो ना, इसमें से मेरे को बोलो, इसमें से मेरे को बोलो, इसमें से ही दोनों चीज निकला, मैंने घर का मैच नहीं लगाया कुछ भी। सी 180 डिग्रीज पाई रेडियन, तो अगर मेरे को कैन आई राइट 180 as 1 into 180, so 1 वैसे का वैसा रह जाएगा, so 1 degree would be equal to what, pi by 180, 1 degree is equal to pi by 180 ना, am I correct, 1 degree would be equal to pi by 180, right। तो मेरे को लेट्स से 2 डिग्री चाहिए, 2 डिग्री चाहिए, तो मैं क्या करूंगा सर, 1 डिग्री पाई बाय 180 होता है ना, तो आप 2 डिग्री के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करो। दिस इज द सिंपल लॉजिक, जब हम बच्चे थे तभी सीखा था, एक चॉकलेट 5 रुपए का आता है, तो 2 चॉकलेट कितने का होगा, 2 into 5। सो सिंस वी हैव गॉट के 1 डिग्री इज पाई बाय 180, तो 2 डिग्री के लिए मैं क्या करूंगा, एक का जो था उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो कैन आई कंक्लूड फ्रॉम दिस, टू कन्वर्ट फ्रॉम अ डिग्री टू रेडियन, what I supposed to do is I multiply by pi by 180,
Okay, I'll multiply by pi by 180. ठीक है. Now and for reverse way round, can I say pi को मैं लिख सकता हूँ pi into 1. So मैं 1 वैसे का वैसे ही रखूंगा. Pi I'll send in the denominator of 180. So 180 upon pi, this entire thing would be degree and इधर 1 radian आएगा. So what I can say, 2 pi is equal to 360, 2 pi by 360. Yeah, that is one and the same thing. Na? 2 pi by 360 is pi by 180. हाँ, so 1 radian कितना मिला? 180 by pi degree. So 2 radian के लिए मैं क्या करूँगा? 2 को मैं 180 by pi से multiply करूँगा. As simple as that. तो वो सब झमेले में पढ़ने से better we'll remember this only. Degree to radian is pi by 180 and radian to degree 180 by pi. Got it? चलो, we'll see the standard conversion. Standard angle कौन से है जो most precisely use होने वाले? 30 degree. तो 30 degree is how much radian? Pi by 6. Correct? 30 degrees pi by 6. Next would be 45 degree. 45 degree. So 45 degree would be, can I say degree से radian के लिए what we do? We multiply by pi by 180. Am I right? Yeah. Then 45 fours are correct. So what I'll get? Pi upon 4. So 45 degrees pi upon 4 radians. Got this point? Now 60 degree. 60 degree is how much? 60 into pi by 180. 60 into pi by 180. So it would be pi by 3. Yeah, now you all can get the answer. So pi by 3 and radian ka symbol is C. C hai matlab we call it as a radian. Got it? Now 90 degree. 90 degree. 90 degree. Can I say 90 into pi by 180? 90 into pi by 180. So 90 by 2. It is simply pi upon 2 radians. Am I right? It is pi upon 2. What is 180 degree? What is 180 degree? वो तो स्टैंडर्ड कन्वर्जन ही तो है जहां से तो सब डिराइव हुआ. हाँ, तो अगर then too if you want you can do the same thing. 180 into pi upon 180 which is nothing but pi only. ठीक है, मतलब वहां से तो सब स्टार्ट हुआ. ठीक है. Now what would be 270 then? What would be 270 then? 270 degree. 270 degree. What would be 120 degree and 360 degree? Chalo, come on, tell me. This all degrees into radian. Tell me. 3 pi by 2. Yeah, correct. What I'll do is the same thing. Same this steps kar rahe hain. We'll multiply this thing with pi by 180. Yeah, just a second. Let me finish this and I'll go into the previous side. So 270 into 1 upon 80. So 93s and 92s. So 3 pi upon 2 radians. Okay. Now 120, same thing. Same thing we can do. 120. Just a second. 120 into pi by 180. 0 0 cut 6 2s and 6 3s. 2 pi by 3 radians. Okay. What about 360 degree? What about 360 degree? What about 360 degree? 2 pi, correct. I'll multiply 360 by pi by 180. So what I'll get this as 182. So 2 pi radians. Am I clear? So degree से radian conversion समझा. And radian से degree उल्टा ही होगा. That we are going to do right after this. Just you note it down. ठीक है? And obviously, we are not going to do this thing throughout the year. हम ऐसा नहीं करेंगे सर 30 डिग्री मैं तुमको पूछूंगा सर रुको मैं 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तुमको बताता हूँ. ऐसा करोगे तुम्हारी जवानी चली जाएगी, तुमको आएगा ही नहीं मैथ्स. As of now ठीक है, if you can do, if for this you multiply that into pi by 180. ठीक है, but after 1 or 2 lecture you should remember, you should by heart this all things. 30 degree मतलब pi by 6, 45 pi by 4, 60 pi by 3. सबको कंफ्यूजन इसमें होता है. क्यों होता है? 30 डिग्री है ना तो उनको लगता है कि नीचे 3 आएगा.
अपने अपने घर का मैथ्स नहीं है, वी सपोज टू फॉलो द रूल्स, ठीक है, वो अपना माइंड गेम है। 30 में अभी भी देखो 6 महीने के बाद भी समवन माइट से 30 डिग्रीज पाई अपॉन 3, ठीक है, तो वो ध्यान देना, 30 डिग्रीज पाई अपॉन 6, 45 डिग्रीज पाई बाय 4, 60 डिग्रीज पाई अपॉन 3, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने बता दिया। तो यू शुड मेक अ नोट ऑफ दिस कि हाँ ये दोनों, you will be very conscious while writing. 90 degrees pi upon 2, 180 degrees pi, 270 degree is 3 pi by 2, 120 is 2 pi upon 3. ये ठीक है, ये इतना याद, मैथ्स जो है जेई सीईटी के लिए फोकस कर रहा है, उनको याद रखा, उन्होंने याद रखा, तो दैट इज वेल एंड गुड। 270, 120, इनफैक्ट मैथ्स वालों को तो 35 डिग्री भी आएगा, 35 डिग्री, 15 डिग्री, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज भी आएगी, ठीक है। ओके, लास्ट पेज। सो एम आई क्लियर विद दिस, एम आई क्लियर विद दिस? how do we convert a degree measure to a radian measure? डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, ठीक है। नाउ, और हाँ, बुक और पेन लेके बैठने का, हम कॉमर्स वाले नहीं है कि हाथ हिलाते आएंगे, पेन बाजू वाले से लेके, एक पेज बाजू वाले से लेके, ठीक है। सो वी आर नॉट हियर टू शो अ मूवी, वी आर नॉट सीइंग अ मूवी। हाँ, पॉपकॉर्न पिपकॉर्न खाते रहोगे, ऐसा नहीं चलेगा। हाउ कम 180 बाय पाई? मैंने बोला ओके, देन टू यू स्टे आफ्टर द लेक्चर, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, 180 बाय 180 इक्वल टू पाई रेडियन कैसे आए, ठीक है। ओके, अभी व्हाट नेक्स्ट, क्या मैं, हाँ, नाउ व्हाट विल डू इज रेडियन टू डिग्रीज, व्हाट नेक्स्ट इज रेडियन टू डिग्री, ठीक है। या सेम थिंग, द रिवर्स वे अराउंड, पाई बाय 4, देन फॉर द डे, नहीं रुको भाई, सॉरी सॉरी, I thought student, sorry sir. So should I stop it here, sir? Hello. Okay. Okay, fine. So we'll stop the lecture here. So anyone have got any doubt? He or she may stay. बाकी के लोग जाओ। सर, आप कुछ अनाउंसमेंट करना है क्या, आतिफ सर? Okay, 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 no problem. If anyone have any doubt, रुक सकते हो, बाकी के लोग जा सकते हो। Last slide will continue in next class. हाँ हाँ, हरिओम, you stay. I'll tell you. Yeah, bye bye. Answer that we'll discuss in next class only. We'll do radiant to, yeah, you mail me. जिसको डाउट है रुको, हाँ, जिसको नहीं है तो जा सकते।
हाँ हाँ हाँ, आयुष यू ऑल्सो स्टे। बाय। So these slides. So I'll share the PDF. M is a measure angle. Yes, yes, we'll get this as well. M stands for measure angle. तो हम डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। One second, measure angle. That is a measure of angle AOT. Okay, so how we got 180 as pi radian, but some of you is not getting. See, कैसे मैंने बोला, first of all, what is radian you must have got. What is radian you must have got. What is 1 radian is equal to, that you must have got. Hello, am I not audible? Hello, 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 hello. Yeah, now, okay. So as I said, how we got 1 radian? As I mentioned, 1 radian मतलब ऐसा एंगल जिसमें लेंथ ऑफ द आर्क वुड बी इक्वल टू माय लेंथ ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो ऐसा रेडियन, ऐसा एंगल, सेंट्रल एंगल आई वुड से, जहां पे मेरा ये दोनों आर है, राइट, दिस आर द रेडियस, एंड मेरा लेंथ ऑफ आर्क शुड आल्सो बी इक्वल टू आर। तो वो जो सिनेरियो क्रिएट होगा एंड उसमें जो मेरा सेंट्रल एंगल होगा, इसको तुम प्रोट्रैक्टर से मेजर करना, तो वो जो एंगल होता है उसको भी कॉल 1 रेडियन। एंड अगर हम if we calculate that by our protractors, so we'll get 57.32 approximately, this much as a in a degree measure, and इसको ही हम बुलाते हैं 1 रेडियन। सो 1 रेडियन कैसा सिनेरियो है जहां पे हमारा लेंथ ऑफ आर्क मेरे रेडियस से इक्वल होगा। ठीक है, नाउ अभी पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री कैसे हुआ, लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद 3, सो क्या मिलेगा तुमको, अप्रोक्सीमेटली 171.99 मिलेगा। जबकि पूरा सेमी सर्कल का कितना एंगल कंट्रीब्यूट होता है, कैन आई से, ये 90 और ये 90 टोटल 180 होता है। पूरे सर्कल का 360 है, तो हाफ सर्कल का 180 होगा, करेक्ट। हाँ, बट इफ यू सी 3 रेडियन जो है वो 180 बना ही नहीं रहा। 3 रेडियन तो कुछ समथिंग 171.99 बना रहा है। सो टू बी प्रीसाइज अगर हम गिने तो है ना, इतना जो पार्ट बचा है ना, दैट इज नथिंग बट दी 0.14159.265, 0 पॉइंट दिस मच रेडियन, 0 पॉइंट दिस मच रेडियन। ठीक है, सो और सिंपल वर्ड में बोले 3.14 है, तो 3 रेडियन कवर हो चुका है। इतना जो पार्ट बचा है वो 0.14 रेडियन है। ठीक है, तो वो हम वो मेजर कर सकते हैं, पर ऑब्वियसली क्या हमको कंप्यूटर्स ही चाहिए, उसके बिना हम मेजर नहीं कर पाए। ठीक है, सो अगर मैं 0.14 रेडियन करूंगा, इतना पार्ट जो बचा है छोटू सा, दैट इज अ 0.14 रेडियन। ठीक है, 0.14 रेडियन इतना होगा, एंड ये पूरा 3 रेडियन है, तो कैन आई से 3, और तब जाके मेरा 180 डिग्री बनेगा, तब जाके मेरा 180 डिग्री बनेगा। और आई कैन से सेमी सर्कल, अभी मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ कि 180 पूरा सेमी सर्कल इन टर्म्स ऑफ रेडियन इज known to be a pi radian, and semicircle in terms of a degree is nothing but a 180 degree. So obviously I can compare them क्योंकि दोनों सेम फिगर है एंड दोनों एंगल ही बता रहे हैं, एक रेडियन में बता रहा है और एक डिग्री में बता रहा है। ठीक है, एक डिग्री में बता रहा है, तो कैन आई से पाई रेडियन इज नथिंग बट अ 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन वो केस में मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि पाई रेडियन इज इक्वल टू दी 180 डिग्री। ठीक है, अभी और कोई है? One second, let me open the chat box.
Understood. Okay. Yeah. Now you may leave. Yeah. अभी किसी को डाउट? या हाँ ठीक है, वो मिल जाएगा वो तो। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। या भाई, तो कोई तो पूछ रहा था एडवांटेज ऑफ रेडियन, क्या क्या वो। या हाँ ठीक है, वो यो दैट यू विल गेट, रिकॉर्डिंग यू विल गेट। या यू मे लीव। या बाय। हाँ एक्चुअली बोला जाए तो रेडियन, बिकॉज नाउ 11th onwards we are only going to deal in radians only. That's why we are going to learn this system. फिजिक्स में भी वही यूज होगा, मैथ्स में भी वही यूज होगा, रेडियन में ही सब मेजर यूज होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। हाँ मतलब या वी विल बी मेजरिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज वेल। साइन ऑफ 60 डिग्री नहीं दिखेगा हमको, मिलेगा साइन ऑफ पाई बाई 3 रेडियंस। तो मतलब रेडियंस में ही वी आर गोइंग टू डील नाउ, इसलिए हमको कन्वर्जन पता होना चाहिए। या डिग्री टू रेडियन विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट लेक्चर, रेडियन टू डिग्री सॉरी। या यू मे लीव नाउ। या बाय। या बाय। मेंडिंग टू be Bye 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 bye.